Hi, welcome back to my channel. Today we'll be talking about budget, the summary of a budget. Without wasting any time, just let's start this topic. Indian Union budget, and it is basically taken from only IS notes as well as from Vision's notes. So both are here. So our first question is, what is budget, right? So I would like to tell you very small, simple words that it is known as the annual financial statement of the government, right? And if you'll ask me in depth, then as per Article 112 of the Indian Constitution, the Union budget is basically the statement of the estimated receipts and expenditure of the government. So that is what you can say is a budget. So next question will arise: what's new in this budget of 2022 to 2023? So I would like to highlight few points of this, that it seeks to lay the foundation and give a kind of a blueprint to steer the economy over the Amrit Kal of the next 25 years. And I repeat, Amrit Kal of the next 25 years from India, as currently as we know, we are celebrating Azadi Ka Mahotsav, the 75th year. From 75th to 100, when India will be 100. So this Amrit Kal for the next 25 years. And what is special in this budget of 2022-2023? It seeks to complement macroeconomic level growth with a focus on microeconomic level of all inclusive welfare. And those, let me tell you, those who doesn't have any idea about economics, so micro, generally in macro we deals with longer, we see that in a longer sphere, longer period of time, like policies, inflations, all comes under macroeconomics, MA. And then microeconomics deals with money supply, all those curves related issues, policies, RBI money, that everything comes under this micro, MICRO. There's a difference, micro and macro. I hope it's clear. So one can say that it's a holistic approach in Amrit Kal, as currently India is celebrating its 75th. So from 75th year to when India will become 100. So we are going to follow some goals in mind, that what we really wanted to achieve in this Amrit Kal period, that is focus on growth and all inclusive welfare. And the second one is promoting tech-enabled development, energy transition and climate action. And the third will be virtuous cycle starting from private investment crowded in by public capital investment. So ये 3 point हैं, these are the 3 points that will be a kind of a goal kept in mind of when we'll be heading towards 100th of year, when we'll celebrate India's 100th. So it will take around 25 years in this Amrit Kal goal, right? So again, I would like to tell you that this year's economic budget 2022 to 2023 is basically, you can say it's divided into 2 parts. That is part A, that deals with macro. Again, I have described that recently, that what is the basic difference between micro and macro level, right? So part A deals with macro. It deals with part A, like part of the budget where the various schemes are announced and allocations are made to several sectors, right? So the priority of the government are also announced in this part. And whereas on part B, it deals with the finance bill, which contains taxations, proposals such as income tax, revisions and indirect taxes, right? So part A and part B. So in part A, basically there are 4 to 5 pillars that we can call straight away. So one is PM Gati Shakti, will talk about in part A. Second, inclusive development also will talk about in part A, this inclusive development. And this third point, that is productivity enhancement and investment, that includes the sunrise opportunities, energy transition and climate actions, right? And the fourth one is financing of investment. So there are basically 5 points where this budget revolves around, and that too we are talking about part A, right? And part B, it deals with the finance bill, taxation, income tax, revision of indirect taxes, policies, etc., and money and all that. That everything comes around in part B. Clear? Part A and part B. Net, if I have to say, part A deals with macro part of Indian economy, macro in
longer period of time, larger perspective where your inflations and everything is counted. So macro, ठीक है, जब मैं टर्म ले रही हूँ macro, that means larger, बड़े स्केल पे, राइट. और पार्ट बी डील करता है आपका फाइनेंस, बिलिंग एक्सेट्रा पे. ये आपका डिविजन हो गया एक तरीके से. देन अब सबसे पहले पार्ट ए की हम बात करें तो इसमें 4 पिलर्स हैं. देयर आर 4 पिलर्स एज आई डिस्कस्ड. पीएम गति शक्ति 1. Second is inclusive development, we'll talk about. Then third is productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action. The fourth one is financing of investment. Investment की बात की गई है. तो ये चार पिलर हैं जिसके इर्द गिर्द आपका पार्ट ए रिवॉल्व करता है. इट रिवॉल्व्स अराउंड पार्ट ए. पार्ट ए इन चारों पिलर्स की बात करता है. तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे पीएम गति शक्ति कि पीएम गति शक्ति क्या है, राइट. सो पीएम गति शक्ति जो हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे पार्ट ए में. तो पार्ट ए में सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं पीएम गति शक्ति. डू रिमेंबर दिस. पीएम गति शक्ति क्या है? द अप्रोच है. इट इज अ अप्रोच which is basically driven by 7 engines. Why I'm using this word 7 engines? Because earlier you might be, or somewhere you must have studied about roadways, railways, 4ways, right? So, but here there are 7 engines. First is roads connectivity, and with everything related to roads comes under PM Gati Shakti. First is roads, second is railways, third is airport, fourth is ports, fifth mass transport, and sixth is waterways, and the last but not least logistic infrastructure. Logistic infrastructures में आपके पार्क पीपीपी मॉडल के अंडर वो बिल्डअप करना, वो सब इसमें आएगा. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? 7 engines. It deals with 7 engines, namely roads, second railways, third airports, fourth ports, fifth is mass transport, and then sixth is waterways, and seventh, last but not least, logistic infrastructure. Now here is one important point, do not forget this. The project pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. As we all know that pipelines in India is something not very common nowadays. You'll only see in the high posh Delhiite areas, or like only on those areas, right? So pipeline का भी इसमें क्या है? Pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. Do remember this, right? इसमें हो क्या रहा है पीएम गति शक्ति में? ये फर्स्ट पॉइंट है पार्ट ए का. इसमें 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे पार्ट ए में. तो फर्स्ट पॉइंट है पीएम गति शक्ति. फर्स्ट पॉइंट पीएम गति शक्ति में हमने क्या पढ़ा? इट रिवॉल्व्स अराउंड 7 इंजन्स. वो मेरे को लगता है सबको आ चुका होगा. रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ऑल एंड ऑल कर क्या रहा है पीएम गति शक्ति? व्हाट इज हैपनिंग हियर इज इंडिया इज फोकसिंग ऑन इट्स द नेसेसिटी ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो it revolves around world-class modern infrastructure and logistics energy. We want to develop that. ठीक है, तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक पीएम गति शक्ति का एक थोड़ा सा मैंने आपको व्यू पॉइंट देने की कोशिश किया कि क्या है इसमें. देन और इसमें सिर्फ यही 7 नहीं रहेंगे. इसमें आपको रोड ट्रांसपोर्ट है, रोपवेज भी है. रोपवेज है, मास अर्बन ट्रांसपोर्ट भी आएगा, मल्टी मॉडल आएगा, लॉजिस्टिक पार्क्स आ जाएंगे इसमें. लॉजिस्टिक पार्क्स लोकेशन फॉर थ्रू पीपीपी मोड के थ्रू, एंड रेलवेज कनेक्टिविटी एंड ऑल एंड ऑल. जैसे आपके भारतमाला था, वो जो भारतमाला प्रोजेक्ट था वो आपके हाईवेज या नेशनल हाईवे से लिंक था, बट इसमें सारा ही होलिस्टिक अप्रोच इसमें देखने को मिलेगा. ठीक है, रोपवेज आ जाएंगे, पाइपलाइन, एवरीथिंग. तो बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात इसमें चल रही है. किसके अंडर? पीएम गति शक्ति. क्लियर. नाउ सेकेंड पॉइंट पार्ट ए अंडर हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट. अब इसमें हम डेवलपमेंट की बात करेंगे थ्रू इंक्लूसिवली इसको डेवलप करने की बात करेंगे. सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर हमारा रोल प्ले करता ही है. बहुत सारे इसमें आपके एरियाज फोकस ऑन, लाइक एग्रीकल्चर इज वन ऑफ देम. रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मस्ट है, डैम्स की कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट. देन एमएसएमई है, राइट. देन स्किल डेवलपमेंट्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ इज ऑल्सो देयर, welfare etc. हर घर नल से जल, all schemes etc. योजनास will be in this portion, this पार्ट ए का. पार्ट ए जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सेकेंड पॉइंट में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर ये पॉइंट्स कवर होंगे, राइट. अब एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आप सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर को कैसे बेटर किया जाए. तो नाबार्ड एक बैंक है, जिनको थोड़ा भी आइडिया होगा, दे कैन रिलेट इट. व्हाई नाबार्ड? बिकॉज इट डील्स विद एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर के लिए उसको नाबार्ड बैंक बनाया गया. तो नाबार्ड टू फैसिलिटेट फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नाबार्ड बैंक
डील करता है। अनदर मोर इम्पॉर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करेंगे प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। एज वी ऑल नो टुडे वी डोंट वांट टू ईट फर्टिलाइजर्स और इंजेक्ट की हुई चीज़ें, तो वी वांट ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल एज वी वांट टू प्रमोट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद फार्मर्स lands close to river Ganga, and the other one is promoting post harvest value addition consumption and branding of millets products। millet आप याद रखना इसको, do remember this point, millets। और इसमें क्या है, और इसमें है delivery of digital and high tech services for farmers। as we all know India is not technologically driven, we are still using obsolete technology। obsolete मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी, सो इसको टेक को भी यूज किया जाए इसमें, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। एंड यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्म, सी हाउ कितना अच्छे से इसको, हाउ वाइडन द पर्सपेक्टिव इज टू यूज ड्रोन्स इन फार्मिंग। सो ये भी इसमें माइंडसेट एक टेक ड्रिवन इसको बोला जा सकता है। लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, तो ये सारी इसमें बात की गई है एग्रीकल्चर। देन सेकंड आपका इसमें है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये हम बात कर रहे हैं पार्ट ए के, हमने अभी पार्ट पढ़ा है पहला पीएम गति शक्ति। सेकंड पॉइंट हम इसको कवर कर रहे हैं इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके अंडर हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर। अब सेकंड पॉइंट इसमें आएगा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट, ठीक है। केन और बेतवा का वाटर जो एक्सचेंज होगा इसमें, ये ज़रूर पढ़ लेना, इसको मैं आपको सिर्फ एक समरी बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, केन और बेतवा का प्रोजेक्ट है which we can see this it's an implementation of Cane Betwa link project benefiting around 9.1 lakh hectare farmland, providing drinking water, बहुत important है, drinking water to 62 lakh people and generating 130 megawatt power as well। पावर भी मिल रही है वहां से, और पीने का पानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 62 लाख पीपल उनको पानी मिलेगा। एंड 5 मोर सच प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भी और भी रिवर से लिंकिंग प्रोजेक्ट इसको बोला जा सकता है। इसमें से आपका होगा पर तापी नर्मदा लिंकेज, गोदावरी कृष्णा लिंकेज होगा, कृष्णा पन्नार लिंक, पन्नार कावेरी लिंक। सो दीज ऑल प्रोग्राम्स कम्स अंडर रिवर लिंकेज लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसमें एमएसएमई, राइट। अब इसमें बात करने जा रहे हैं हम लोग एमएसएमई की। तो जिनको नहीं मालूम है एमएसएमई क्या होता है, मैं ब्रीफली आपको एक लाइन में बता दूं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एमएसएमई की इसमें बात की गई है। बहुत सारे इंटरलिंकिंग वेरियस पोर्टल्स की बात की गई, लाइक उद्यम ई श्रम है, NCS एंड असीम पोर्टल्स टू बी लिंक्ड। तो बहुत सारे वेरियस पोर्टल्स हैं, उसको एक साथ लिंकिंग की बात की गई हुई है। इसमें हमने बात की है इसमें एक्सटेंडिंग ECLGS। ECLGS क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। सो ECLGS की बात की है, एक्सटेंडिंग ECLGS विद फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइजेस, राइट। और क्या इसमें बात की गई है एमएसएमई के अंडर, रीवैम्पिंग CGTMSE। ये क्या है, C फॉर क्रेडिट, G फॉर गारंटी, राइट, T फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो ये है रीवैम्प करना है इसको, CGTMSE को, राइट। बेसिकली क्रेडिट की बात की गई, क्रेडिट ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख करोड़ फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को इसमें देने की बात की गई है। देन है इसमें रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME। MSME again what is, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises। So raising and accelerating MSME performance, RAMP, RAMP, RAMP मतलब raising and accelerating MSME performance, और with an outlay of rupees 6,000 crore over 5 years will be rolled out। So ये इसका एक तरीके से मैंने आपको बेसिक नेट बताया कि एमएसएमई में क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमने पार्ट ए में हमने कवर किया था ये गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति। सेकंड हम कवर कर रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंडर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, अभी हमने कवर किया एमएसएमई। फोर्थ हम इसमें बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या कुछ 2-3 पॉइंट्स में आपको बेसिक नेट बता देती हूँ। इसमें एक बात की गई है देश स्टैक ई पोर्टल, देश DESH। अब वो है क्या, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, दैट इज देश स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट की बात है तो ऑनलाइन सिस्टम, एज वी ऑल नो कोविड के दौरान या ड्यूरिंग कोविड
it's a blessing in disguise kind of situations where everything is online. So स्किल डेवलपमेंट की इसमें बात की गई है. साथ में कुछ स्टार्टअप्स की बात की गई है. देयर आर वेरियस स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन ए सर्विसेज. सो ऐसे कुछ स्टार्टअप्स की बात की गई है. एज वी ऑल नो इंडिया इज थर्ड इन यूनिकॉर्न. तो इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं आफ्टर यूएस, चाइना एंड इंडिया इज इन थर्ड. तो इट्स स्टार्टअप्स की काफ़ी बात की गई है. था स्किल डेवलपमेंट. देन अगर हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. एजुकेशन में क्या है, एक 1 class 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PM E-विद्या टू बी एक्सपैंडेड फ्रॉम 12 to 200 TV चैनल्स. 12 से 200 TV चैनल्स उसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी टू PM E-विद्या. ये है. देन लैब्स पे बहुत फोकस किया गया है. एज वी ऑल नो लैब्स नॉर्मली क्या होता है, हम किसी साइंस लैब में गए, आधे बच्चों को उसमें पता होता है लैब से प्रोजेक्ट किया, एक को पता होगा कैसे करते, बाकी सबको नहीं होता. तो बट ये अच्छा है, इट्स गुड दैट लैब्स में बहुत इसको स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है. वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू बी सेट अप टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट. तो अच्छा है कि लैब पे फोकस किया गया है. तो इट्स गुड. फोकस इज गिवन ऑन लैब्स. ई लैब्स पे भी फोकस किया गया. लैब्स तो है ही है, एंड ई लैब्स वर्चुअल होंगे. जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं पबजी एंड ऑल दैट, तो वैसे ही वर्चुअल लैब्स पे भी बात की गई कि क्यों ना वैसी लैब्स क्रिएट किए जाएं जिससे कि एक वर्चुअली एक जो स्टूडेंट है वो उसको और सीख सके कि अगर इसमें हम NaCl को, अगर इसमें हम लैब्स में किसी इसको हम फॉर्मूला को अगर मर्ज करते हैं तो क्या होगा एंड ऑल दैट. तो जैसे आपको गेम्स खेलते हैं ना वर्चुअली, वैसे ही लैब्स की भी बात की गई कि इसमें ई लैब्स होनी चाहिए. इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द वे. और हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डेवलप्ड फॉर डिलीवरी थ्रू डिजिटल टीचर्स. अब टीचर्स भी आपके ऐसे पुराने ज़माने के जैसे होते थे वैसे नहीं. आई मीन पुराने ज़माने का आई वोंट से कि मैं मजाक करूँ, डिजिटल टीचर्स भी होंगे वहाँ पर. डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन. सो जैसे आप लोगों का वेबिनार वगैरह होता था, उस ऑनलाइन पे मतलब फोकस करके एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसे हुआ है कि आपको बहुत सारा आपका एक तरीके से पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है ना. पहले आप टोटली बुक्स पर थे, बट अब क्या हो गया कि विदाउट टीचर ऑल्सो यू कैन लर्न. अगर हम बात करें आयुष्मान कार्ड सभी ने बनाया होगा, सुना होगा. अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी देयर. इट विल कंसिस्ट ऑफ डिजिटल रजिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज. उनका रजिस्टर होगा पहले तो डिजिटली. देन नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज देयर फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ पे बहुत बात की गई है. स्टूडेंट्स को भी बोला होता है बोर्ड्स के एग्जाम्स में जनरली कितना प्रेशराइज ना हो. सो मेंटल हेल्थ पे भी बात की गई है. एंड दिस विल इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, राइट. एंड इसमें इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर की बात की है. दैट कम्स अंडर 3 schemes. वन इज मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य. वात्सल्य दैट वी ऑल नो, जिन्होंने भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा. मिशन वात्सल्य स्मृति ईरानी जी उनके अंडर है ये. एंड थर्ड इज सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 वर्जन जो है इसका ये है. 3 बेसिकली इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर में 3 स्कीम्स के ऊपर मेन फोकस किया गया. ठीक है. देन विल टॉक अबाउट ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें इंक्लूसिवली हम लोग वेलफेयर को कैसे फोकस करें, वो ये लास्ट टॉपिक इसके अंदर मैं ब्रीफली आपको बता दूं. स्कीम से लाइक हर घर नल से जल. देन PM आवास योजना की बात की है, जहाँ पे 80 लाख हाउसेज टू बी कंप्लीटेड इन 2022 to 2023. इसका भी ध्यान रखा गया है बजट में. देन PM डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड्स. एज वी ऑल नो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, द नागालैंड, मिजो, ऑल दैट 7 sisters ऑफ द स्टेट. सो उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है. देन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है. डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस, 100% ऑफ पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम. 100% है. डिजिटल पेमेंट्स में इसमें है. एज यू ऑल नो इंडिया, UPI इंडिया का बहुत आजकल रिसेंटली इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट. तो ये सारी हमने ये सेकंड पॉइंट कवर किया है पार्ट ए में. पहला हमने किया PM गति शक्ति. सेकंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जहाँ पे हमने बात की एग्रीकल्चर, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, MSME, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस. सो ये हमने पॉइंट कवर किए हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे. नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट अंडर पार्ट ए, दैट इज प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट. अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे. इसमें इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी इन्हांस कैसे की जाए एंड इन्वेस्ट कैसे किया जाए.
में कुछ बेसिकली हाइलाइट्स हैं, की हाइलाइट्स हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है 2.0, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम थ्रू आईटी ब्रिजेस. आईटीज आर रियली, एज वी ऑल नो, इन इंडियाज आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट नाउ डेज. एंड एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ परिवेश पोर्टल. ठीक है, एक पोर्टल इसका नाम है परिवेश. एंड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. एक सी पेस करके है, एस्टैब्लिशिंग सी पेस टू फैसिलिटेट वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज. ठीक है, कंपनीज का इसमें ह्यूज रोल प्ले करेगी. एंड देन एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिलिंग सिस्टम. हम लोग बिल ले लेते हैं दुकानदार से, ऐसे ले लेते हैं, बट ई बिल पर भी यहाँ पे फोकस किया गया है, सो दैट विल गेट टू नो कि कितना इंडिया में कितना इनकम या इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, कितना इंडिया डेवलप कर रहा है. देन इनिशिएटिव टू सेव पेपर्स, सपोर्ट टू 5G अंडर PLI स्कीम भी इसमें बात की जा रही है. 5G का भी इसमें कनेक्टिविटी, एज वी ऑल नो इन इंडिया स्टिल वी आर यूजिंग 4G. तो ओपनिंग अप ऑफ डिफेंस में भी इसमें बात की गई है, पर डिफेंस में R&D की बात की गई है इसमें, राइट. सो इसमें डिफेंस में R&D का अगर हम बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसमें बात की गई है, और एक स्टार्टअप है इसमें, वो इसमें लॉन्च किया गया है. एंड ईज ऑफ लिविंग की बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग. तो ये सब इसमें बात, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, जिसमें प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट जो है थर्ड पॉइंट है पार्ट ए का, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट. इसमें टेलीकॉम सेक्टर की भी बात की गई है, 5G का जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड IT हार्डवेयर की बात की गई है, सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस रखा गया है. देन फार्मास्यूटिकल्स की बात की गई है. तो ये नेट मैं बताऊंगी कि ये सारा का सारा थर्ड पॉइंट में है, प्रोडक्टिविटी इन्हांस कैसे करी जाए और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए. मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये है पार्ट एक के अंडर हमने पढ़ा PM गति शक्ति, सेकेंड हमने पढ़ा है इसके अंदर हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट. अब फोर्थ हम इसकी हम बात करेंगे. फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. इसमें सबसे पहले आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट कितना, और कैपिटल इसमें इसकी बात की गई है, तो इसको आप देख सकते हैं. और आफ्टर दैट मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज की भी इसमें बात की गई है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखा गया है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू टू पंप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड इन 2022 टू 2023. दूसरा इसमें बात की गई है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी. जी हाँ, सही, आपने सही सुन रहे हो, इसमें डिजिटल रुपी की इसमें बात है. इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय RBI स्टार्टिंग भी अराउंड 22 टू 2023 में जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट हो जाएगा होपफुली. और इसमें मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज की बात की कि अदर रिसोर्सेज कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. यहाँ इसमें बात की कि ग्रीन बॉन्ड्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रीन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं है, डू रिमेंबर, इट्स ग्रीन बॉन्ड, राइट. देन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसमें उसकी बात की गई है. Then this measures to avoid investment by venture capital and private equity investment की बात है. Blended finance for sunrise sector, sunrise industries की भी इसमें बात की गई है. और जिसके थ्रू providing it will provide a physical space to grow states, like enhanced outlay to scheme for financial assistance to states for capital investment, capital or revenue. Then for 2022 to 2023, states will be allowed a physical deficit of 4% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. पावर की बात की गई है, पावर सेक्टर. अदर इसमें हम बात करें और क्या है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, तो इसमें वेंचर कैपिटल की बात की है. वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन ₹5.5 लाख करोड़. एंड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी ग्रीन बॉन्ड्स की बात है. डेटा सेंटर्स होंगे एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा. ब्लेंडेड फंड्स टू बी प्रमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर सच एज डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा एंड एग्रीटेक. ये सब किसके अंडर आते हैं? ब्लेंडेड फंड्स टू बी प्रमोटेड बाय सनराइज सेक्टर, सनराइज. देन इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी, डोंट फॉरगेट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यस, बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटल रुपी. ये सारा हमने कवर किया पार्ट ए में, ठीक है. मैक्रो में जो मैं आपको बता रही थी, मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो मीन्स लार्जर, बड़े ग्राउंड पे, तो बड़ा जैसे स्कीम्स वगैरह हम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर कवर किया. सो ये सारे पॉइंट्स जो हमने बात की, PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर हम जो बात कर रहे थे अभी, फिर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, फिर फिजिकल इन्वेस्टमेंट, ये सनराइज वगैरह, ये सारा इसमें किसमें कवर हुआ, ये सारा का सारा हमने पढ़ा पार्ट ए में. अब पार्ट बी की अगर हम बात करें, पार्ट बी में अगर हम देखा जाए तो इसमें आ जाएगा कि
budget को it seeks to take forward the policy of stable and predictable tax regime with vision to establish a trustworthy tax regime. मतलब यहाँ पे हम tax pays की बात करेंगे, direct taxes की बात करेंगे, and money रुपी का हम बात करेंगे कैसे circulate होता है. So all in all, part B of the budget deals with the finance bill, which contains taxation proposals such as income tax, revisions and indirect taxes. तो ये हमारा part D होगा, ठीक है. इसमें भी सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स प्रपोजल की, तो उसके अंडर अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू फाइल अपडेट रिटर्न विद इन 2 years फ्रॉम करेक्टिंग एरर्स. तो 2 साल का इसमें फाइल करने के लिए इनको बोला गया टू करेक्ट द एरर्स. और टैक्स रिलीफ टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको टैक्स रिलीफ दिया गया है. एंड रिड्यूसिंग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव्स. तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं, टैक्स प्रपोजल्स. इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनपीएस अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. देन एक्सपैंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ eligible startups for providing tax incentives. Income from transfer of virtual assets to be taxed at 30% and better litigation management to avoid repetitive appeals. बहुत अच्छी बात की गई कि any surcharge or cess on income and profits not allowable as business expenditure. तो ये सब इसमें टैक्स प्रपोजल्स के अंडर इसमें बात चल रही है, मतलब बात की गई है इसमें, ये पोर्शन कवर किया गया है इसमें. एंड इसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बताया गया है आईटी के सेक्टर में, लाइक कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन टू बी फुल्ली आईटी ड्रिवन इन सीज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू बी देयर फॉर आईटी ड्रिवन टेक्नोलॉजी. एक्साइज ड्यूटी की भी इसमें बात की गई है, एक्साइज ड्यूटीज एंड ऑल. ये सारा हमें टैक्स प्रपोजल में पड़ा है. दूसरा अगर हम बात करें रुपी का इसमें बहुत क्रूशल रोल है. रुपी कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, फिर दूसरा हम बढ़ेंगे रुपी कहाँ से जाता है, तो कहाँ से हमें पैसे आते हैं, गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम या रुपीस कहाँ से मिलता है. तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इसमें जो सेक्टर है जहाँ से हमें जनरेट होता है रेवेन्यू, वो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 35%. फिर अगर हम बात कर लें, ये जीएसटी है 16% उसमें से मिलता है. तो जीएसटी प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल, ठीक है. और अदर देन दैट और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है 15% वहां से आता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से 15% आता है. तो ये कुछ एरियाज है, मेजर एरियाज. इसके अलावा अगर हम बात करें, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है, वहां से 7% टैक्स आता है. नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है वहां से 5%, कस्टम से आता है 5%. तो ये कुछ एरियाज है जहाँ से पैसे आते हैं, रुपी कम्स फ्रॉम. अब पैसे जाते कहाँ से, गोज टू कहाँ पे जाते हैं वो देखते हैं. सबसे ज्यादा सेक्टर्स यहाँ पे है इंटरेस्ट पेमेंट्स, यहाँ पे है तो 20% ये रूल प्ले करता है इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है. देन स्टेट्स का जो शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वहाँ पे 17% इसके बाद आती है. देन 10% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 15% चला जाता है. अगर सेंटर कोई स्कीम्स वगैरह निकालती है तो ऑल एंड ऑल बजट में कितना शेयर है जो पैसे का जहाँ जाता है, हम बोलते हैं ना पैसे कहाँ गए, सरकार कहाँ गई, तो कुछ स्कीम्स है 15% उसमें जाता है, इसमें बजट में रखा गया. सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है वो 9%, पेंशन की जहाँ पे आप बात करें 4%, अदर एक्सपेंडिचर्स 9%, सब्सिडीज की बात करें तो 8%, डिफेंस है वो उसमें 8%, इंटरेस्ट पेमेंट ये मैंने जो बात की, ये सब यहाँ पे पैसा जो है, यहाँ से आप बोलो ना कि पैसा जाता का है इन एरियाज में. नेट अगर मैं बताऊँ बात करूँ तो यहाँ पे जाता है, ठीक है. तो बजट एट ग्लांस आप इसमें देख सकते हो, ग्रेजुअली आप देख सकते हो उसमें रेवेन्यू रिसीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिट्स है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे ग्राफ्स आप इसमें देख सकते हो ना. हाँ, इसमें एक और है एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स. हमने बात की स्कीम्स कौन कौन सी, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना इन करोड़ में है, पीएम किसान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य ये सुरक्षा योजना. तो ये सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे पैसा आपका इन्वेस्टमेंट इसमें मनी इसमें क्रूशल रोल एक प्ले करता है. देन कम्स मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन की कहाँ पे इस बार का बजट सबसे ज्यादा किसमें. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे ज्यादा बजट इसमें रखा गया था, जो कि है 525,166.15. तो इतने अमाउंट हमने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस साल के बजट में हमने रखा है. के बाद सेकंड क्या है, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ दिस कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. खाने का इसमें फूड पे हमने कंसंट्रेशन किया है बहुत ज़्यादा, इसमें इसको बहुत तवज्जो दी है. लाइक 217684.6% हमने इतना अमाउंट इसमें आफ्टर डिफेंस रखा है. थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पीएम गति शक्ति भी बहुत फोकस किया, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है और रोडवेज का हाईवेज का इसमें बहुत क्रूशल रोल है, थर्ड नंबर पे है. फोर्थ है कहाँ जाएगा
कैसे एलोकेट हुआ मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्रीज में? तो फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है, रेलवेज को भी रिवैम्प करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। वो वंदे मातरम एंड ऑल ट्रेन्स जो भी जितनी आप देख रहे हो उसको रिवैम्प कर रहे हैं एक तरीके से। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी बिल्ट अप। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फ्रेम्स वेलफेयर, उस पर वेलफेयर होना ही चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें, उसको बात की गई है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर एरियाज। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर्स ये सब, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो ऑल एंड ऑल ये था आपका बजट, बट सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखना इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, मतलब इसमें रखा गया है कि हम लोग डिफेंस में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा निकाला गया। कितना है? 525166.15। सो दैट्स ऑल फॉर today's video lecture. I hope you'll get this, I hope that you like this video, and thank you for listening, and I'll be able to provide some sort of information to you. If you find this informative, then do share, subscribe and like this channel. That's all for today. Signing off, MJ. Take care. Bye bye.